آئندہ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ 12 دسمبر کو فیصل آباد ڈویژن کے ٹکٹوں کے ہونے والے فیصلے تاخیر کا شکار۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے فیصلے التوا کا شکار۔ 12 دسمبر کو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ آئندہ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ 12 دسمبر کو فیصل آباد ڈویژن کے ٹکٹوں کے ہونے والے فیصلے تاخیر کا شکار۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے فیصلے التوا کا شکار۔ 12 دسمبر کو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ آئندہ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا فیصل آباد کے کچھ انتخابی حلقوں کے فیصلے کرنے میں مشکلات کے باعث کیا گیا؟ اس پر بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر سے۔ جی ظفر صاحب بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ جی مسلم لیگ نون ان دنوں کافی متحرک ہے اور اپنی ٹکٹوں کے حوالے سے ان کا جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، انٹرویوز کر رہا ہے، اور فیصل آباد بھر کے مسلم لیگی جو امیدوار ہیں وہ قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ہوں، وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ فیصل آباد فیصل آباد ڈویژن کے ٹکٹوں کے لیے حوالے سے جو انٹرویوز ہونے ہیں اس کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، مگر اب 12 دسمبر کو یہ انٹرویوز نہیں ہو سکیں گے، اور کیونکہ نواز شریف کی پیشی ہے 12 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب یہ اس کا کوئی باقاعدہ ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی گئی، اور ایک طرح سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئے ہیں فیصل آباد ڈویژن کے ٹکٹوں کے فیصلے جو انٹرویوز ہونے تھے، اور یہ جو چند دن مزید لگیں گے، اس حوالے سے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ محض پیشی کی وجہ سے، کیونکہ نواز شریف طیارہ یوز کر رہے ہیں آج کل، پیشی کے گھنٹے کے بعد وہ لاہور واپس بھی پہنچ سکتے تھے، اس لیے شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں۔ فیصل آباد کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ 12 دسمبر کا اجلاس جو ملتوی ہوا ہے، اور کیا پارٹی قیادت مختلف حلقوں کے بارے میں فیصلے کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، یا واقعی یہ نواز شریف کی پیشی کی وجہ سے کیا گیا ہے، کیونکہ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں بہت سخت قسم کا کمپٹیشن ہے، اور مختلف گروپنگ ہے، مختلف امیدوار جو ہیں وہ نواز شریف سے رابطے میں ہیں، اور پارٹی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ان حلقوں کے لیے نام فائنل کرنے میں، تو اس لیے یہ بظاہر جو نواز شریف کی پیشی کی وجہ سے 12 دسمبر کو فیصل آباد ڈویژن کے ٹکٹوں کے حوالے سے جو اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے فیصل آباد میں یہ افواہوں کا بازار گرم ہو گیا مسلم لیگ نون کے حلقوں میں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ اجلاس کافی دنوں کے بعد ہوگا، اور تب تک شاید اندرون خانہ کچھ امیدواروں کے بارے میں مسلم لیگ نون کی قیادت اور جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لے، اور اس کے بعد یہ اجلاس ہوگا۔ جی فیصل آباد کی ٹکٹوں کے ہونے والے فیصلے تاخیر کا شکار۔ ظفر ڈوگر صاحب آپ کا۔ گزشتہ روز چنیوٹ میں زچہ اور بچہ کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، سی ای او ہیلتھ نے اپنی مدعیت میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ وقوع کے ایک روز بعد تھانہ سٹی چنیوٹ میں مقدمہ درج کرایا گیا۔ ایف آئی آر میں سنگین غلطیوں کی وجہ سے کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز چنیوٹ میں زچہ اور بچہ کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، سی ای او ہیلتھ نے اپنی مدعیت میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرایا۔ وقوع کے ایک روز بعد تھانہ سٹی چنیوٹ میں مقدمہ درج کرایا گیا۔ ایف آئی آر میں سنگین غلطیوں کی وجہ سے کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ سی ای او ہیلتھ نے اپنی مدعیت میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرایا۔ گزشتہ روز چنیوٹ میں زچہ اور بچہ کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، ایف آئی آر میں زچہ اور بچہ کی ہلاکت، سرکاری ادویات کی چوری کا ذکر بھی کیا گیا۔ وقوع کے ایک روز بعد تھانہ سٹی چنیوٹ میں مقدمہ درج کرایا گیا۔ ایف آئی آر میں سنگین غلطیوں کی وجہ سے کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ ملزمہ نورین نے بھی خود کو بری الزمہ قرار دے دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز چنیوٹ میں زچہ اور بچہ کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، سی ای او ہیلتھ نے اپنی مدعیت میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ ایف آئی آر میں زچہ اور بچہ کی ہلاکت، سرکاری ادویات کی چوری کا ذکر کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے۔ جی بابر اپڈیٹ کیجیے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی سائم، گزشتہ روز چنیوٹ میں زچہ اور بچہ جاں بحق ہونے کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ سی ای او ہیلتھ نے اپنی مدعیت میں دھوکہ دہی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کروا دیا ہے۔
जबकि FIR में जिच्चा बच्चा की हलाकत और सरकारी अद्वियात की चोरी का जिक्र भी मौजूद है। दूसरी तरफ मुकदमा सिर्फ दफा 419 और 420 के तहत दर्ज किया गया है। 420 जो है वो धोखाधड़ी है और जो 419 है ये वो दफा है जिसमें कोई जाली डॉक्टर जो है वो अपने आप को डॉक्टर अगर जाहिर करता है तो उसके तहत इसको सजा जो है वो 419 के तहत दी जाती है। ताहम थाना सिटी में मुकदमा जो है वो वकूआ के एक रोज बाद दर्ज कराया गया है और हलाकतों और चोरी का जिक्र करने वाले CEO ने खुद ही दफात भी जो है वो बताई। और दूसरी तरफ बाबसूख जराये के मुताबिक जो FIR है उसमें संगीन गलतियां जो है वो सामने आई हैं, जिस वजह से केस का रुख जो है वो बदल जाएगा। दूसरी तरफ कम्युनिटी मिडवाइफ का भी सिलसिला में कहना है कि वो अपना आप खुद बरी जिम्मा जो है वो करार दे रही है। उनका कहना है जैसे भी तबीयत जो है वो जो जिच्चा थी उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है तो उसको रेफर कर दिया गया था। ताहम अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ हो गई है, जिसमें 2 हलाकतें हुई थी जिच्चा और बच्चा की, और अब जो मुकदमा है वो महकमा सेहत इंतजामिया की गफलत की वजह से रुख जो है वो तब्दील कर रहा है। और जो मुकदमा दर्ज करवाया गया उसमें जो धोखाधड़ी का जो दफात है वो शामिल करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। गुज़िश्ता रोज चिन्योट में जच्चा और बच्चा के जहां बहक होने का मामला CEO हेल्थ ने अपनी मुद्दत में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। वकूए के एक रोज बाद थाना सिटी चिन्योट में मुकदमा दर्ज कराया गया। FIR में संगीन गलतियों की वजह से केस का रुख ही बदल गया। गुज़िश्ता रोज चिन्योट में जच्चा और बच्चा के जहां बहक होने का मामला। मेरा नाम हफीज़ बतूल नौरीन है। नौरीन के नाम से मेरा नाम जो है वो ज़्यादा फेमस है। मैं CMW हूँ, कम्युनिटी मिडवाइफ हूँ। मेरा लाहौर रोड पे महल्ला शेरपुरा UC 33 में मेरा क्लिनिक है। मुझे नॉर्मल डिलीवरी की इजाज़त है। DHQ हॉस्पिटल चिन्योट से मैंने ये स्कूल से ही अपनी ट्रेनिंग ली है और इधर ही मैंने अपना सेंटर बनाया है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरे पास पेशेंट आया है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई अभी, पेशेंट का BP कम हुआ है, मैंने पेशेंट को रेफ़र कर दिया है। पेशेंट बाद में कब फौत हुआ है इसके बारे में मुझे नहीं पता, और हमें इतनी परमिशन है कि अगर हम हैंडल नहीं कर सकते तो बाकायदा पेशेंट को रेफ़र किया जाए। मैंने पेशेंट के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, पेशेंट के लवाकीन जानते हैं। मैंने उनसे ये कहा है पेशेंट का BP कम है, आप इसको ले जाएं। पेशेंट को वो लेके इधर से चले गए हैं। एक CEO से 2 कंपनियां चलाने का फॉर्मूला फेस्को को ले डूबा। कमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंस, सिविल वर्क्स, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन समेत तमाम शोबाजात में काम रुक गए। फेस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव की अदम मौजूदगी ने कंपनी के लिए बड़ा बहरान पैदा कर दिया। एक CEO से 2 कंपनियां चलाने का फार्मूला फेस्को को ले डूबा। कमर्शियल ऑपरेशन, फाइनेंस, सिविल वर्क्स, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन समेत तमाम शोबाजात में काम रुक गए। बिजली के नए मंसूबों समेत मीटर और ट्रांसफार्मर्स के मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए। फेस्को में कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर्स की 70 करोड़ रुपए की अदायगियां ना हो सकी। निजी कंपनीज ने अदम अदायगियों पर फेस्को के मीटर और ट्रांसफार्मर देना बंद कर दिए। सनती शहर के नए इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का इजरा भी रुक गया। पेंशनर्स की अदायगियां भी बुरे अंदाज से मुतासिर हो गई। शोबा सिविल वर्क्स के कॉन्ट्रैक्टर्स की 20 करोड़, मटेरियल सप्लायर की 50 करोड़ से ज्यादा की अदायगियां न हो सकी। बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में CEO की अदम मौजूदगी कंपनी मामलात को बुरे अंदाज से मुतासिर कर रही है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। DEO एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग फैसलाबाद राहीला बानो का तबादला। राहीला बानो को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी स्कूल पंजाब ने शगुफ्ता नाज को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग तैनात कर दिया। खवातीन विंग तैनात कर दिया। DEO एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग फैसलाबाद राहीला बानो का तबादला। राहीला बानो को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब ने शगुफ्ता नाज को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग तैनात कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से DEO एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद राहीला बानो जो है उनको फैसलाबाद से ट्रांसफर करके लाहौर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि फैसलाबाद में उनकी जगह शगुफ्ता नाज जो है उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री विमेन विंग तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से शगुफ्ता नाज जो है उन्होंने आज बतौर DEO एलिमेंट्री एजुकेशन विंग अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, जिस पर उन्हें ऑफिस में वेलकम किया गया असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार की तरफ से, और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर बतौर DEO एलिमेंट्री एजुकेशन विमेन विंग शगुफ्ता नाज ने ओहदे का चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया है। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। DEO एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग फैसलाबाद राहीला बानो का तबादला। राहीला बानो को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत।
सेक्रेटरी स्कूल पंजाब ने शगुफ्ता नाज को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग तैनात कर दिया। डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग फैसलाबाद राहीला बानो का तबादला। राहीला बानो को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब ने शगुफ्ता नाज को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग तैनात कर दिया। डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग फैसलाबाद राहीला बानो का तबादला कर दिया गया। राहीला बानो को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब ने शगुफ्ता नाज को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन खवातीन विंग तैनात कर दिया। खाद महंगे डीजल से पैदावारी अखराजात में इजाफा। काश्तकार परेशान, गन्ने की कम कीमत पर तहफुजात का इजहार। गन्ने की कीमत को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड के मरकजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान की ज़ेर सदारत किसान बोर्ड के अरकान का इजलास हुआ। इजलास में मरकजी बॉडी की जानिब से गन्ने की कीमतों में इजाफे के मुतालबे को अदालत के जरिए चैलेंज करने के फैसले बारे आगाह किया गया। शुरका ने मुश्तरका तौर पर फैसले की तायीद की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि किसान बोर्ड की जानिब से कीमतों के तयन से ही तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। ताहम हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर कीमतों को अदालत के जरिए चैलेंज करने का फैसला किया गया है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई और फी एकड़ अखराजात में इजाफे के बाद गन्ने की कीमत 500 रुपए से कम मुकर्रर करने से काश्तकारों की हकतलफी हुई है। गन्ना जो है ये किसान की वो फसल है जो 1 साल से 1.25 साल तक टाइम पीरियड लेती है और सबसे ज्यादा खर्चा पानी का, खाद का, बीज का और मेहनत का वो इसी फसल पर होता है। लेकिन हमें अफसोस है कि इसकी कीमत तय करते वक्त किसान बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया गया और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इंशाल्लाह इस कीमत जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 400 रुपए का तय किया है, हम इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं। किसान बोर्ड ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है ताकि काश्तकारों को दरपेश माली मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की बड़ी नाहली डिवीजन भर में 250 से ज़ायद इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज़ नॉन फंक्शनल। 250 से ज़ायद नॉन फंक्शनल सोसाइटीज़ को डिरजिस्टर्ड न किया जा सका। डिवीजन के 300 में से सिर्फ 20 इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटीज़ फ़आल, गैर फ़आल हाउसिंग सोसाइटीज़ मेंबरान से गैर कानूनी चार्जेस लेने लगी। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो के बायस से फैसलाबाद ज़िला में 300 में से 280 जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी हैं वो गैर फ़ाल हैं। ताहाल गैर फ़ाल हाउसिंग सोसाइटी को डी रजिस्टर्ड न किया जा सका। इसी तरह जो है वो 50 के करीब ज़रई कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी हैं जो गैर फ़ाल हैं और इसी हवाले से मुख्तलिफ मेंबरान से जो है वो गैर कानूनी तौर पर चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। और महकमा कोऑपरेटिव के सर्किट रजिस्ट्रार की जानब से ताहाल गैर फ़ाल जो इंडस्ट्रियल और ज़रई कोऑपरेटिंग सोसाइटी हैं इनको डी रजिस्टर न किया जा सका और साल 2023 और 24 में नई जो सोसाइटीज़ हैं उस हवाले से इंस्पेक्शन सर्वे भी न किया जा सका, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ जो ज़रई और इंडस्ट्रियल हाउसिंग। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट कायम। सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट में नए ग्रिड स्टेशन समेत दीगर मनसूबाजात पर काम तेज होगा। एक्सीएन शकील हैदर को सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट का पहला एसई तैनात कर दिया गया। शकील हैदर का कहना है तामीराती मनसूबाजात के लिए सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट का कयाम दरीना मुतालबा था। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद बिलाखिर सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट जो है वो कायम कर दिया गया है और सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट में एक्सीएन शकील हैदर लक को जो है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का चार्ज भी दे दिया गया है। शकील हैदर लक जो है वो फेस्को सिविल वर्क्स डायरेक्टोरेट के पहले एसई के ओहदे पर जो है वो काम करेंगे और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। सर, सिविल वर्क्स जो है वो फेस्को का एक अहम शोबा है। एक अरसा दराज से सिविल वर्क्स को जो है वो डायरेक्टोरेट करार नहीं दिया जा रहा था, अब जाके जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद इसको से जो है वो डायरेक्टोरेट बना दिया गया है। क्या कहना पसंद करेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को और फेस्को मैनेजमेंट के, जिन्होंने सार्फिन की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी समझा कि हमारी नई बिल्डिंग्स और नए ग्रिड स्टेशन जो है फेस्को की पूरी जुरिस्डिक्शन में ये बनने चाहिए। फेस्को जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तकरीबन 8 ज़िले जो हैं पंजाब के वो इसके अंदर आते हैं
तो मिलियन ऑफ रुपीज़ के सिविल वर्क्स जो हैं वो इसमें हो रहे हैं, जो फेस्को सिविल वर्क डायरेक्टरेट न होने की वजह से ताख़ीर का और इल्तवा का शिकार होते थे। अब अल्लाह का शुक्र है ये डायरेक्टरेट बन गया, तो अब जो हमारे काम है वो इंशाल्लाह पहले से उनकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और काम भी जल्दी होंगे, और इंशाल्लाह इसकी वजह से फेस्को और हमारा मुल्क जो है ये तरक्की करेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सिविल वर्क्स जो है वो फेस्को का एक अहम शोबा है और मिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो है वो यहाँ पर टेंडरिंग होती है। नए ग्रेड स्टेशंस की जो तमीर है सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक वो होती है। तो इन तमाम तर जो है वो मसाइल को मलूज़ खातर रखते हुए फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से सिविल वर्क्स को जो ना सिर्फ डायरेक्टोरेट कर दिया गया बल्कि ऐसी की तैनाती भी जो है वो भी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। डायज एंड केमिकल एसोसिएशन के वक्त का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, नायब सदर असलम भल्ली से मुलाकात, चैम्बर की मेंबरशिप के हवाले से दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। नुमाइंदा डायज एंड केमिकल से कहना है था चैम्बर में हमारी एसोसिएशन की कायमा कमेटी होनी चाहिए ताकि हम अपने सेक्टर की नुमाइंदगी कर सकें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। डायज एंड केमिकल्स की जो एसोसिएशन है उसके ओहदेदारान ने आज मुलाकात की है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर असलम भल्ली से, और इस मौका पर डायज एंड केमिकल्स की कायमा कमेटी की दरख्वास्त जो है वो चैम्बर में जमा करवाई गई है कि फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर डायज एंड केमिकल्स की एक एसोसिएशन की कायमा कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए ताकि हम अपने सेक्टर की नुमाइंदगी कर सकें। इस मौका पर असलम भल्ली जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के, उनकी जानिब से यकीन दहानी भी करवाई गई है कि वो दरख्वास्त जो है वो डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि सदर है फैसलाबाद चैम्बर के उन तक पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे डायज एंड केमिकल्स की जो एसोसिएशन है वो आपको मिले। और इस मौका पर तमाम मेंबरान ने ख़ुसूस तौर पर जो फैसलाबाद चैम्बर की मेंबरशिप की ग्रोथ के ऊपर और उसके समरात के ऊपर भी गुफ्तगू की, और इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम अपने पूरी एसोसिएशन के मेंबरान को कोशिश करेंगे कि फैसलाबाद चैम्बर का मेंबर बनाएं ताकि एक अच्छे तरीके से नुमाइंदगी हो सके। असलम वली का कहना था कि चैम्बर ना सिर्फ ताजरों की रहनुमाई करता है बल्कि बहुत सारे ऐसे इदारे और बहुत सारे उन इदारों की जानिब। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।